हेलो हेलो। इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं बेटे। अंडर द इम्पोर्टेंस बेसिकली थ्री टाइप बताई जा रही है, यानी टू मीट कंटीजेंसी, टू प्रमोट सेल, एंड थर्ड टू अवेल ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। है ना, व्हाट टाइप ऑफ मीट ऑब्लिगेशंस, दैट मीन्स फंड्स आर always required to meet the uses uh, up and down, meet the ups and down of the business and unforeseen problem, that means future problem. And if suppose some manufacturer anticipates shortage of raw material after a period, clearly he would like to stock of raw material, but he will be able to do so only when money would be available. And second, to promote sale. So in this era of competition, competition age, lot of money is required to spend on activities for promoting sale, like advertisement, personal selling, home delivery eh, of goods, etc. And third, to avail of business opportunities. Any funds are also required to avail of business opportunities. But suppose a company want to submit a tender, but some minimum amount is required to be deposited along with the application. So in the case of non-availability of fund, if would not be possible for company to apply. Any doubt? Anybody? हेलो हेलो। यार बोला करो भाई, अगर बोलोगे नहीं तो हम क्लास नहीं ले पाएंगे, सॉरी यार। है दिमाग का दही कर देते हो यार तुम लोग, यस नो कुछ बोलते ही नहीं हो यार, अजीब पागलपन है तुम लोगों के अंदर। एमबीए कर रहे हो यार, पता नहीं क्यों एमबीए कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार। है कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते हो, हम कहते हैं एनी प्रॉब्लम तो तब भी कोई नहीं बोलता, हम कहते हैं एक्सप्लेन करो तब भी कोई नहीं बोलता है। हवा में हम बस गाते रहे चिल्लाते रहे, ये कौन सी बात हुई यार, कुछ बोलो तो कम से कम रिस्पॉन्स तो दो। माइक ऑन करिए सब लोग अपने। बताइए हमने कौन सी इंपॉर्टेंस बताई अभी अभी, एक्सप्लेन करिए। रिपीट हो रही है आवाज, बोलिए जोर से। 3 पॉइंट्स मैंने राइट डाउन कराए अभी भी आपको। सबसे पहला, टू मीट कंटीजेंसी एंड टू प्रमोट सेल्स एंड टू अवेल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। एंड थर्ड टॉपिक, स्कोप ऑफ स्कोप और फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके पॉइंट नोट करिए सबसे पहले। अंडर द स्कोप और फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पॉइंट नोट करिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। सबसे पहला पॉइंट, सपोर्ट फॉर डिसीजन मेकिंग, such as scope or function. Second, ensure the availability of timely and relevant and reliable financial and non-financial information. Ensure the availability of timely, relevant and reliable financial and non-financial information. And third, manage risk
And fourth, uses resources efficiency effectively and economically. Next, provide a supportive control environment. And last, provide a supportive control environment. Next, last, comply with authorities and safeguard assets. तो सबसे पहला जो पॉइंट था वो था प्रोवाइड सपोर्ट फॉर डिसीजन मेकिंग, यानी व्हाट टाइप ऑफ स्कोप या सच एज फंक्शन फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोवाइड मैनेजर with the information and knowledge they use या they need to support operational decision and understand the financial implication of decision before they are made. And it is also enable manager to monitor their decision for any potential financial management, a financial implementation, and for lesson to be learned from experience and to adopt and react as needed. Any without any financial information, you can't any take any decision related to finance. And second point, ensure the availability or timely or relevant or reliable financial and non-financial information की बात हो रही है. So during the any कहना चाहिए management cannot uh, accountability process है ना without information है ना. तो through this any information reliable and relevant and timely provide the information. इसका था हेलो जरा ये मृदुल सर का फोन आ रहा है, जरा एक सेकंड में बात कर लूं फिर क्लास ले रहा हूँ है? ऑन करूं है? हाँ दादा, हाँ हाँ क्लास चल रही दादा, क्लास चल रही. नहीं हम अभी डिपार्टमेंट दादा आज नहीं पहुंच पाए, लेट हो गए उठने में. तो हमने सोचा यार पढ़ा लें यार, कल भी आत्मा कचोटती साली पढ़ा ना पाओ तो. अब वही 10 से 11, 11 से 12 पढ़ा के 12:30 तक आ जाएंगे डिपार्टमेंट. स्कूटी जाएंगे दादा, बताइए आदेश करिए कार से. 12 से 1 है, आना तो ले लेना, काहे कौन क्या है चुप अकेले बैठे वहां पे. नहीं तो जैसे 12 से 1 है तो हम 12 बजे तो 12:30 बजे तो निकलेंगे है ना. आप मतलब 12:15 तक पहुंच पाएंगे आपके पास. रहती है फिर पीछे बैठ के चलेंगे, उसमें कौन सी. अच्छा अच्छा अच्छा.
ठीक ठीक दादा, ठीक ठीक ठीक, लेते हुए आएंगे, ओके। जाए वापस। चार्जर तो हो नहीं रहा। अब सारे सब लोग फिर से ऐड होंगे। स्टार्ट करें। हेलो, मृदुल सर की भी क्लास है आप में? हेलो, नहीं, मृदुल सर की क्लास है आप में? हेलो, हम कुछ पूछ रहे हैं, उसका कोई जवाब ही नहीं आ रहा है क्लास उनकी? हाँ, हमारी आवाज नहीं आ रही? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए हम लोग स्कोप और फंक्शन की बात कर रहे थे फाइनेंशियल, तो दो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए, एक तो डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट और एक यानी इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट और रिलायबल और टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है यानी थ्रू दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड थर्ड, मैनेज रिस्क की बात हो रही है, यानी व्हाट टाइप ऑफ मैनेज रिस्क। तो ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई, assess or consider the financial consequence of event that could, so its ability to achieve to the goal and objective as a result in significant loss or resources. So financial management is an important component of risk management and need to be considered with the full range of business risks such as operational या strategic risk as well as social, legal, political and environmental risk. And all these risks to manage it through this financial management. And next, uses resources. And through this financial management, properly, effectively and efficiently uses of the resources through this FM. And next, provide a supportive control environment. And through this FM, and he contribute to promoting an organizational climate that fosters the achievement and financial management objective, a climate that include commitment from senior management and a share values and ethics and communication and organizational learning. And last, comply with the authority and safeguard assets. FM is essential to ensuring that organization carry out its transactions in accordance with applicable legislation, regulation, and executive order. And it also provide an organization with a system of control for assets, liabilities, revenue, and expenditure. And these control help to protect against fraud, financial negligence, है ना? And financial rules or principles and losses of assets or public money.
all these points related to the scope or function of the FM. And next point, role of FM. What type of role? और ये कह सकते हैं कि यानी फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है ना, मैनेजर, उसके क्या रोल होते हैं, किस तरह से बिजनेस को वो ऑपरेट करता है। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव या रोल बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है क्या, यानी फॉरकास्टिंग एंड प्लानिंग इज द फर्स्ट रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर या इन द रेफरेंस ऑफ मैनेजर, यानी फर्स्ट रोल होता है उसका फॉरकास्टिंग एंड प्लानिंग। तो यानी व्हाट टाइप ऑफ फॉरकास्टिंग या व्हाट टाइप ऑफ प्लानिंग इन्वॉल्व थ्रू दिस मैनेजमेंट। तो बताया जा रहा है कि फिनांस स्टाफ यानी should be able to continue activities of continuous activities of various यानी various department है ना within the business and be able to forecast both the short and long term requirement of these department। यानी finance staff should be open minded to take into account factors which may affect the future prospect of this business। And second, coordination and control। And second point, as such as role, coordination and control, and to satisfy the need of various stakeholder, any finance management staff should ensure efficient utilization of the resources। The activities of various departments should be and coordinate to avoid various department, any without any coordination there will be competition within the business on scarce resources। For example, if the purchasing department purchase from a cheaper source, है ना, it will be improve its budgetary position, but may be the quality may not be that good and will result in poor performance of the manufacturing department। So proper coordination and control is must in any organization। Next, decision on finance market is a third point, such as role, decision on finance market। So decision market, नहीं नहीं मैं कोई दिक्कत नहीं, वो आज रह गया वहां पर, चलिए राइट डाउन किया बेटे, डिसीजन ऑन फिनांस मार्केट। तो अंडर द डिसीजन ऑन फिनांस मार्केट, any financial staff are required to sources of fund, you know, for the enterprises, as they are supposed to have a wider knowledge on financial market। You know, financial any finance staff will advise the firm on both short and long term sources of finance। And second, they are supposed to consider both cost and the financial position of the business, any uh, before any financial market। And with growing in international trade,
financial manager need to introduce the firm to both local and international sources of finance. And third, they are supposed to compare the rate level in different market, but also consider product available on these international market. Any is a different type of decision related to finance market through this financial manager. And next, risk management. Next point है बेटे risk management, such as role of the financial role of the FM. Risk management. Finance need to assess all the risks which our business face and make pre-arranged effort to minimize. अभी आपको बताया था मैनेज रिस्क वाले में, है ना, कि एफएम का काम क्या होता है कि एनी ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई द या एसेस ऑफ द कंसीडर आर फाइनेंशियल, है ना, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इवेंट एंड दे कुड कम क्या बोलते हैं कॉम्प्रेसेस। क्या हुआ? हेलो? हेलो? हम कौन सा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं बताइए? नाउ दिस टाइम कौन सा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? रिस्क मैनेजमेंट, वेरी गुड। तो अंडर द रिस्क मैनेजमेंट, हाँ, रिस्क मैनेजमेंट में बताया जा रहा है कि फिनांस स्टाफ जो होता है वो नीड टू एनी एसेस ऑल द रिस्क, है ना, तो विच द बिजनेस फेस एंड मेक प्री अरेंज एफर्ट टू मिनिमाइज और इफ पॉसिबल एलिमिनेट दीज रिस्क। तो द रिस्क में इंक्लूड कौन कौन सी रिस्क मैंने बताई थी? पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, environmental, any which can be minimized by investing. Hello? हाँ, तो which any which can be reduced, है ना, by obtaining an insurance cover. And next and last, performance measurement. लास्ट रोल होता है एफएम का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, मेजरमेंट बल्कि कहा जाएगा परफॉर्मेंस मेजरमेंट। Any financial staff should appraises the performance of the enterprises as a whole and also its department. And the staff should compare the target set for the enterprises, but actual performance achieved any financial management staff should construct a framework any which can be able to establish the meaningful interrelationship in a first financial aim of the company, second valuation of the company, and third measuring the performance of the company। तीन चीजों को यहाँ पर अंडर द परफॉर्मेंस मेजरमेंट काउंट किया जा रहा है बेटे। हाँ, थर्ड वाला बेटे मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। any way under this concept define the any when its goal any aim have been influenced and method of valuation chosen या company performed must be assets measure। तीन चीजें हैं बेटे, फर्स्ट है फाइनेंशियल एम या फाइनेंशियल गोल ऑफ द कंपनी, सेकंड है वैल्यूएशन और तीसरा है मेजरिंग द परफॉर्मेंस। ये तीनों चीजों को मेजरमेंट किया जाता है अंडर द
परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसके बाद बेटे सेकंड टॉपिक आता है आपका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। तो बेसिकली आपने सुना होगा कि दो टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक होता है बेटे सेकंड बताइए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हेलो। दो, हाँ दो ऑब्जेक्टिव होते हैं एफएम के बेटे, एक प्रॉफिट को इंक्रीज करना और दूसरा वेल्थ को इंक्रीज करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द प्रॉफिट maximization. You know, profit earning is the main aim of every economic activity. Agreed with you? है ना, बेसिकली हर बिजनेस का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। तो अ बिजनेस बीइंग एन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन earn profit to cover its cost and provide fund for growth. Huh? So any maximization of the profit is of considered as the implied objective and therefore is considered as one of the important aim. Any profit earned by the firm measure the amount of success made by the firm. If all the firm in the industry tries to maximize their profit at large by utilizing the resources optimum, यानी बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि यानी मिनिमम यूटिलाइजेशन यानी मिनिमम यानी या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके। यानी इफ द फर्म maximization their profit, uh, the wealth of the shareholder also increases. Okay, यानी but the interest of other outside parties may be ignored. यानी profit maximization cannot the sole objective, यानी इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट नहीं है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यानी if profit are given undue to importance then problem may arises and a different type of problem arises बता रहे हैं। यानी फर्स्ट इज द टर्म प्रॉफिट इज वैल्यू। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, वही तो उन्होंने बताया, यहाँ पर यही चीज क्लियर की जा रही है कि इफ द फर्म मैक्सिमाइज दियर प्रॉफिट तो द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर आल्सो इंक्रीजेज, है ना, बट द इंटरेस्ट ऑफ अदर आउटसाइड पार्टीज में बी इग्नोर्ड, है ना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन नॉट द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, मतलब किसी भी कंपनी का सोल ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, यानी इट इज अ लिमिटेड ऑब्जेक्टिव। if profit are given undue तो importance then problem may be arises। और जो वेल्थ वेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है ना, इट इज any commonly agreed that the any objective of the firm to maximize value or wealth।
यानी बेसिकली इसमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है, maximization of the value of the share of the firm. Any shareholder wealth is expressed by the present value of all future cash flow in the form of the dividend and other benefit expected from the firm. Any due to any energy increasing the EPS earning per share of the shareholder. क्यों भाई बताओ? हेलो, मतलब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा? जब ईपीएस इंक्रीज होगा। क्यों? मैंने कह रहा है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर यानी रिफ्लेक्ट दिस प्रेजेंट वैल्यू, यानी वैल्यू ऑफ फर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी कॉमन स्टॉक। मार्केट प्राइस ऑफ द फर्म stock represent the any focus judgment of the financial any all market any participated as to what the value of the firm। तो इसमें एक स्टेटमेंट लिख लीजिए बेटे। हेलो, तो वेल्थ वाले में लिखिए प्राइजेस इन द शेयर मार्केट आर लार्जली अफेक्टेड। प्राइजेस इन द शेयर markets are largely affected by many factors like general economic outlook, economic outlook of particular company, कॉमा टेक्निकल फैक्टर भी हो सकता है, और लास्ट में कर दीजिए एंड इवन मास साइकोलॉजी या साइकोलॉजिकल कर दीजिए, मास साइकोलॉजिकल। समझ रहे हैं ना? प्राइस जो अफेक्टेड होता है बेटे, उसमें कई फैक्टर हो सकते हैं। एक तो इकोनॉमिक हो सकता है, इकोनॉमिक आउटलुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कहना चाहिए पर्टिकुलर कंपनी के आउटलुक से, या हो सकता है टेक्निकल कोई फैक्टर हो, या हो सकता है मास साइकोलॉजिकल कोई फैक्टर हो, है ना? तो ऑल दीज फैक्टर इज अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ शेयर्स। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक। हाँ, यही यानी प्यूपिल अप्रोच ऑफ द पब्लिक, मतलब पब्लिक की अप्रोच क्या है, वो किस तरह से सोच रही है आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, उसका आपके मतलब प्रोडक्ट पे कितना बिलीव है। जैसे आज भी लोग एलआईसी को अप्रोच करते हैं कि नहीं करते हैं? यानी मास साइकोलॉजिकल अगर देखा जाए तो क्या है, एलआईसी पे बिलीव है। भले ही आप प्राइवेट कंपनी कितना भी बेनिफिट दे, लेकिन वो कम लेना पसंद करेंगे, लेकिन लेंगे एलआईसी, है ना? म्यूचुअल फंड पे आज भी लोगों का उतना यकीन नहीं है, आज भी लोग एफडी कराते हैं। मास जो साइकोलॉजी है वो क्या है, एफडी करा लो, क्योंकि मालूम है कि इतना भले ही 3 साल बाद मिलेगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि मिलेगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ये सारी चीजें बेटे प्राइस ऑफ शेयर्स को अफेक्ट करती हैं, और जब ये अफेक्ट होगा तो नेचुरल है कि वेल्थ अफेक्ट हो जाएगा, है ना? और आपको मैंने उसमें भेजा भी है स्टडी मटेरियल, उसको और अच्छे से पढ़िएगा तो और बेहतर समझ में आएगा।
हाँ, अच्छा, ये प्रॉब्लम अभी तक बताई नहीं किसी ने यार, आप ही ने बताई। चलिए मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ उसको सेंड करने की। हाँ हाँ, ये भी सही रहेगा, बिल्कुल राइट। वो खान एंड जैन करके है बेटे, पब्लिक के, खान एंड जैन, डॉक्टर खान एंड जैन करके है पब्लिकेशन में। एक्चुअली डिपार्टमेंट में रखी हुई है बुक, तो मैं कल में देख के बता दूंगा। आज मैं क्लास घर ही से ले रहा हूँ अभी, है ना। मेरे हिसाब से वो दिल्ली पब्लिकेशन का ही होगा वो, एकदम क्लियर और बता दूंगा देख करके। तो लास्ट टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए, फाइनेंशियल डिसीजन। अंडर द फाइनेंशियल डिसीजन, बेसिकली थ्री टाइप ऑफ डिसीजन: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिनांस डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। अब आपके जितने भी जो चैप्टर दिए हुए ना बेटे, वो टोटल यानी इन्हीं डिसीजन पर बेस करेंगे, है ना। जैसे अगर हम फिनांस डिसीजन की बात करें तो उसमें क्या आएगा, कैपिटल बस्टिंग, समझ रहे हैं आप। इस तरह से हाँ, मतलब सारे चैप्टर इन्हीं तीन चैप्टरों पर डिपेंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड फिनांस डिसीजन, और थर्ड है आपका डिविडेंड डिसीजन। आई होप हमने मैटर दिया होगा आपके उसमें, जो स्टडी मटेरियल दिया है उसको पढ़िएगा अच्छे से। 12 बज गए कि नहीं? सॉरी, 11, 11, 11 से 12 फिर क्लास लगी है ना तुरंत। चलिए कोई बात नहीं। तो कल कल में इन डिसीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। ओ, ओ, ओके।